Um, Firstly, I would like to thank Mr. Sanjay ji for giving me an opportunity to be a chief guest on this occasion of the 76th Republic Day. Uh, I mean, this is the first time I've been given an opportunity to be a chief guest. So I can recall, the time of my school, when chief guests used to come and they used to tell about their experiences and whatever speech they used to give. I don't want that this should be a speech I used to have an experience of chief guest giving. If anybody has any questions, they should feel to interrupt me on whatever I would be speaking on. So firstly, I would like to say that being 26 January, this is the day on which our Constitution of India came into force. So, so we should have a realization of what the Constitution is about, and this is something which binds all of us, all the citizens of India, to each other. I mean, this is a social contract which we have with each other, and this contract is so deep and so deeply embedded in our lives that it is not just a contract which I have with the people of India, but in fact, to an extent that it's a contract which I have with my family as well as with my wife, or even maybe my children as well as they grow up. Because this is kind of uh, you know like if I have some dispute or some conflict with anybody in the family or any citizen, it's the Constitution which protects me from somebody trying to intrude on my personal matters. And that's why this Constitution is a piece of document which gives you an ability to excel in life. But excellence in life is only possible if your own rights are protected, right? So you have fundamental rights, you have fundamental duties, freedom of expression, and all those things which are mentioned in the Constitution of India. You have to see it's a living document. It's not the girl who kind of gave me an opportunity to speak. The moment I came in, at the time she said that it's not a lawyer's document, and that's something very profound. What she said, that it's not just like a book, but it's something a living document which everybody should feel that what it has and what it conveys. But for most of us, we'll be like, yeah, it's a book, so but we have to feel it every single day. And also I would like to brief on how this country came into force. Like before, 1947, we were like a colony of the British Empire, and how this country has existed even before that. If you go thousands of years back in history, like how these different empires were there. Of course, you're students, so you would have read about Gupta Empire, Maurya Empire, Mughal Empire. So so many people have fought for this land and what this land truly means. So you should have a realization of that what it is. And if you see how the laws have come into and how the laws were before 1950, like under the British Empire, and what happened in 1950, there was a significant event which happened in 1947 when India got independence. Everybody does talk about independence as a great occasion, that that we got independence and now we are free from the British Empire. But there is a very important event which happened at that time, which is not profoundly discussed. And I guess everybody should have a realization of that, was the partition of India. The partition of India into Pakistan and India as a separate country. So that event was a very critical event in the history of India, in which I guess our state suffered a lot, being from Jammu and Kashmir, and Pakistan, our neighboring country. A lot of people died, and a lot of people came from Pakistan to India, and a lot of people went from India to Pakistan. So we have to realize that you are the children of the future, right? So you see your great grandfathers. I mean, they had an opportunity to go to the other side of the border, but they chose this country. So why did they choose this country? And this should be the realization in each one of us and each one of you,
that why this country? What is so great about this country that they chose this country over the other country? So once you have that realization of like what it means to be Indian, I guess you'll get a great opportunity in what you need to do in life. If you see, there is something special about India compared to all the countries in the world, right? I have been in America for like 10, 12 years, but I tell you, in America, I mean, of course, it's a great country and you have great potential to excel in that country. You can, it's a very open-minded country. But if you go from like one, end of the country to the other at the end of the country, I would say like, New York is like the East Coast and you go to California, it's like 3,000 kilometers. Across the country, if you go, you will have the same language, you will have the same food, you will have the same dressing sense. You see the uniformity in that country. But if you see in India, you look at the diversity here. You just go like 100 kilometers from here, the language will change, the food will change, the dressing will change. Everything will keep changing like, like in every 100 kilometers. Or in fact, right here also, like we'll have people, dressing in a different way, eating different foods. The level of diversity in this country is, which cannot be, matched with any other country in the world. And how we Indians are living with each other, even after having so much extreme diversity in all things like language, food, dressing, living together shows like how much tolerance we have for each other. And this is only possible in India and no other country in the world, that with such an extreme level of diversity, we are coexisting with each other. That should make you feel about like what this country is truly about. So I would like to I don't want to take too much of your time. If anybody has any questions, they can definitely ask me. But I would like to just leave it with a thought that you see our like national flag. It has like three colors, the saffron, white, and green. I guess I don't want to create any controversies, but I guess most of you would have read in your books that I guess in fact for me as well, that saffron means strength, valor, white meaning peace, and green meaning fertility, right? But I don't want to exactly point, but you should think about the color of the RSS flag, what it is, and the color of the Pakistan's national flag. So I think it would give you a good hint about how these colors came into force, but I don't want to say anything more than that. I think I'll leave it for your research. Okay, thank you very much. Thank you, sir, for your. मेरा नाम सुशील कुमार है। यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण, मित्रगण बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आइए आपके समक्ष एक बहुत प्यारा सा देशभक्ति सॉन्ग। ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद तू ही है, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद तू ही है। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम किया चाल नहीं दूं, तुझ पे कोई गम किया चाल नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, मेरे वतन, मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। All-rounder Student of the Year from Girls Award goes to Akshara Jain. Award for Student of the Year goes to Suman Kumari. Another award for Student of the Year goes to Amanita Kalotra. Thank you. Please have your seats now.
This day holds a special significance as India emerged as a full sovereign democratic republic from British dominion. India's Republic Day symbolizes the aspirations, values, and ultimate sacrifices of the Indian freedom fighter, and it holds historical and symbolic value. On this day, India broke all the shackles of slavery and emerged as the world's largest democracy with its own identity. Today, we gather here to celebrate the 76th Republic Day of India, a day of pride, unity, and remembrance. On this very day in 1950, our constitution came to force, transforming India into sovereign, socialist, secular, and democratic republic. This remarkable document, crafted under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, is more than a legal framework. It represents the value of justice, liberty, equality, and fraternity that unite our diverse nation. Republic Day reminds us of the sacrifices made by our freedom fighter and the vision of a time to reflect on our responsibilities as citizens to uphold these principles and work toward a stronger, more inclusive India. As we host the tricolor today, let it inspire us to strive for excellence, respect our diversity, and contribute to the progress of our beloved nation. Let us pledge to honor our constitution and make our country proud with our actions. Thank you and Jai Hind. तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में भी हम कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है
तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी ही दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के उसे उसके बेटे का वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा आज निभाऊंगा। IT professional, एक social activist, philanthropist, श्री विवेन मोजा जी, मेरे सहयोगी अध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको 76वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है आज के इस गणतंत्र दिवस का, कवि प्रदीप ने लिखा और भारत रत्न नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी ने अपनी मधुर आवाज में इसको गाया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दूसरी पंक्ति इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, आप भूल न पाओ उनको, इसलिए लिखी है या यही है कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज के इस गणतंत्र दिवस का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उन वीर जवानों और उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपनी जान निछावर के इस भारत देश को आजादी दिलाने के लिए, उनको हमने याद करना है। उनके प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक मतलब हमें समझना है। उनकी जो कुर्बानी थी उसको हमने समझना है। हमें ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। मेरी 1950 में जो आईन हम लागू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो भीमराव अंबेडकर जी ने की अगुवाई में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हो गया, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसमें लॉज है, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
अगर इसके इतिहास में जाएं, देश भारत देश जो है ये ऋषि मुनियों का देश था, ज्ञान का भंडार यहां पर था, इसको सोने की चिड़िया कहते थे, समृद्धि थी, यहां पर कोई गरीब नहीं था, ये इतना समृद्ध देश था कि बाहर के लोग यहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। प्यारे बच्चों, जो आपने आर्चिमेडिस प्रिंसिपल पढ़ा है, जो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, जो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ये सारे लॉज हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले दिए थे। जरा कल्पना कर लीजिए, नॉर्मल से पंडित वहां पर बैठे होते हैं, वो आपको बता देंगे चांद ग्रहण कब होगा, वो आपको बताएंगे सूरज ग्रहण कब होगा। सिंपल एक पंचांग खोल के वो बताएंगे। पंचांग क्या है? ये साइंस है, जो नासा आज साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद ये बताता है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले ही बोला था। तो इतना समृद्ध हमारा देश था। हिस्टोरी की बात कर रहे हैं, इसके इतिहास की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, लगभग 100 साल, 97 साल अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं, 1929 की बात। पहले 1857 में पहले जंग आजादी का बिगुल बज गया। उसके बाद भारत के हजारों लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने जान निछावर कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको एक लालच दी थी कि आप प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर लीजिए, फिर आपको आजादी दे देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, धोखा हुआ। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। आप सोच सकते हो, 1919 में सिर्फ 10% लोगों को, भारतवासियों को वोटिंग राइट्स थे 10 फॉर्म्स के लिए। एक साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन यहां पर 30 अक्टूबर 1928 को आया भारत देश में। साइमन अंग्रेज था, इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए स्वाभाविक है कि एजिटेशन हो गई, इसका प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़क पर आ गए। लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। 29 में 2 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए। इनफैक्ट 1929 में भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक बॉम्ब डाला। अंग्रेज जो है वो हिल गए उससे। उसके बाद क्योंकि लाला लाजपत राय की शहादत से भी लोग भड़क हुए थे, उसके बाद ही 1929 में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्ण स्वराज का या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने उस डिक्लेरेशन में कहा था कि ब्रिटिशर्स ने ना कि हमें इंडियन से फ्रीडम ली है, बल्कि उन्होंने हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे कल्चरल वैल्यूज, इथॉस, हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज सब कुछ छीन के लिए हैं। इसलिए अब हमें इनसे नाता तोड़ना है और 26 जनवरी 1930 को हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। ये 26 जनवरी का जो डेट है, ये 31 दिसंबर 1929 में जो लाहौर में रावी नदी के किनारे लाहौर में, जिसको आजकल मीनार पाकिस्तान कहते हैं, वहां पर यह अधिवेशन हुआ और उस पर यह पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 से संपूर्ण तौर से आजाद होने चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, आजादी हमें 1947 को मिली, लेकिन ये 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया 1950 में
कि जिस दिन हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसको हमने अडॉप्ट किया। देश से हमें एक बहुत प्यार करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें देश को मानना चाहिए। मैं कुछ दिनों पहले बाहर गया था, तो मैं जब वापस आ रहा था ट्रेन में, तो मेरे साथ एक इस्राएल का एक आदमी था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं प्रोफेसर हूं, मेरे 37 पेटेंट है, 37 पेटेंट्स है, मैं 5 महीने प्रोफेसर का काम करता हूं। मैंने कहा 7 महीने फिर बैठते होंगे घर में, छुट्टी दबन नहीं, 7 महीने में देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जाता हूं। अब देख लीजिए कितना प्यार है, एक प्रोफेसर जिसके नाम 37 पेटेंट है, वो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं, एक सोल्जर के नाते। यह है देश के प्रति श्रद्धा और प्यार, समर्पण भाव। अगर आप जापान के लोगों से बात करेंगे, अभी मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू जाने का मौका मिला था, तो वहां पर जापान से एक आए थे वक्ता, उनसे बात करने का मौका मिला, और उनके बातों से जापान के लोग अपने देश को कितना प्यार करते हैं उससे बातों से पता चल रहा था। अगर आप तिब्बत के लोगों की बात करें, कभी आप धर्मशाला जाएंगे, तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोगों के पास, आपको पता होना चाहिए, तिब्बत के लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन उनके मन में मन बिल्कुल तिब्बत में है। वो हमेशा बोलते हैं कि हमें तिब्बत एक दिन जाना है। यह है प्यार अपने देश के प्रति। ऐसा ही प्यार आपको भी जगाना है अपने देश के प्रति। छोटे छोटे काम करने हैं, आप इस देश के भविष्य हो। व्यर्थ में पानी जाया नहीं करना है, यह भी एक योगदान है। अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखनी है, यह भी अपने देश के प्रति प्यार है। ये छोटे छोटे काम, कल को आप प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, लेकिन अपने देश का नाम, अपने देश के प्रति आपको प्यार, यही श्रद्धांजलि है उन वीर जवानों की, यही श्रद्धांजलि होगी उन स्वतंत्रता सेनानियों की, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी वो व्यर्थ न हो जाए। हरिओम उसका नाम था, तो एक कवि, उसने कहा था, ये श्रद्धांजलि है, सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत मां की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते, भारत आजाद दिखाई देता है। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर ले लो, उनका नाम जुबान पर लो, तो पलकों को झपकाना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, यही है श्रद्धांजलि उन वीरों को। और इसीलिए ये चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इसीलिए हम इसको मनाना चाहिए। हमें पूरे देश के उन वीर जवानों को याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जोर से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. That was very enlightening and thoughtful. केवल पानी माइग्रेशन याद की, कहाँ से हम कहाँ आ गए, कहने मतलब कितना अच्छा माहौल था, अब मतलब कैसा क्लाइमेट था, और कहाँ हम इतनी गर्मी में बस रहे हैं। तब से हम सोच रहे थे कि यही अब माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, मगर कभी अभी भी 35 ईयर्स हो गए तो नहीं ख़त्म हो रही है। तो जब भी मेरे मन में कश्मीर की याद आती है, तो मैं ये जो गाना है तो मैं ये गुनगुनाती हूँ। तो आज मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ
तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। चल भी कशीर खतर वन बिशस ने इंडिया खतर वन के ये जो हमसे बिछड़ गया कश्मीर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो हवाओं को सलाम, झूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यारी रंग शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ कभी बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़रियों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, नमस्कार।